अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर आफ़ियत से होंगे। तो यहाँ जी एक और ख़ूबसूरत गुड मॉर्निंग अब्बू जी के वेड़े से। तो अब्बू जी को जी यहाँ मैं नाश्ता करवा रही थी। जो दही था वो अब्बू सबसे पहले खाते हैं, फिर कुछ देर बाद उनको एक अंडा फ्राई हम करके देते हैं, साथ एक ब्रेड का स्लाइस। और यहाँ जी देखें हमने घूंघट में जी पराठे छुपा के रखे हुए थे हैं एंड जी वो तो रज़ाई दी थी ये। और यहाँ जी पलवशा ने बनाने थे पराठे और पराठों के साथ बनना था जी तड़के वाला साग। तो जब जब जी माँ बाप के घर आएँ और स्पेशली किचन में हम जाएँ तो माँ की बहुत याद आती कि गुन्नन पकान वाली जड़ी खस्ती होंदी है सब तो पहला जे तुसी हੱਥ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਆਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁੰਨ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਪੱਲੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਏ ਉਹ ਜੀ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਸੀ ਤੜਕਾ ਤੇ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਏ। ਸਾਗ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਗ ਉਹ ਜੇ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਜੀ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਗ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪਕਣਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਗ ਬੜਾ पसंद है, नाल देसी घ्यो होवे, नाल मक्खन होवे। और ये जी आया था भाई के उधर फार्म से, साथ इसके देसी घी भी आया था और साग भी जी उन्होंने बनवा के भेजा था। तो असी चलाया जी हरियां मर्चां दा ते लहसन दा तड़का। लोग अदरक दा भी लाते हैं तो साग वैसे उंज गर्म भी होंदा है। ਜਿਹੜੇ बीपी पेशेंट ने ना ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੀਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਇਹੀ ਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜੀ ਵਧੀਆ ਜੇ ਪਰਾਠੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰੌਂਠੇ ਚਕੋਰ ਪਰਾਠੇ ਬਣਨਗੇ, ਗੋਲ ਪਰਾਠੇ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਅੰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੰਮੀ ਦੇ ਚਾਰ ਚਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਝ ਰੋਟੀ ਤਵੇ ਤੋਂ ਲੱਥਣੀ ਪਰਾਟਾ ਲੱਥਣਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਛਾਬਾ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਸਾਲਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿਧਰੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਾਲਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਦਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਕਿਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਏ। 80 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸਲੇ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਲੀਪਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲੀਪਰ ਅੰਬਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਝਿੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਚਤਰੌਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਦੂਸਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵਸ਼ਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਜੀ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅੰਮੀ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਐਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਟਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੀਨਾ ਨੇ ਜੀ ਰਲ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਜੀ ਜੋੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਭ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਮਾ ਤੇ ਮੋਲਾ ਦੀ ਸੀ ਜੋੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਣਾ। ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ। ਕਜ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਖਾਲਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਹਾਂ ਜਿਸਲੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮੂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਖੈਰ ਪਲਵਸ਼ਾ ਨੇ ਪਰਾਠੇ ਬਣਾਏ, ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰੌਣਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜੀ ਖਿਦਮਤਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਹੱਲਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਰਾਠਾ ਬਣ ਗਿਆ,
ਇਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ जी दही ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ मक्खन ਤੇ ਤੜਕੇ ਵਾਲਾ ਸਾਗ। ਅੱਛਾ मुझे दही के अंदर मक्खन बहुत पसंद है क्योंकि बचपन जो ਖਾਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਦੀ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਣ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਵਿਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਭੇਜਣੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਦੀ ਜੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ जी मैं कहती हूँ सारियां ਨੂੰ साहब औलाद करे, नेक ते फरमा बरदार औलाद ना नवाजे। और यहाँ जी घर आए, घर आते साथ रास्ते में से कुछ चीज़ें लीं क्योंकि बेटी ने सैलेड बनाना था। जैसे कि अगर कभी घर से बाहर हम खाना खाएं तो आपने अक्सर देखा होगा स्टार्टर में हम सैलेड मंगवा के खाते हैं और सैलेड को ज़रूर ट्राई करते हैं क्योंकि सैलेड खाने से एक तो आप बड़ा फ़्रेश फ़ील करते हैं और वैसे भी आपको एक ये भी फ़ील होता है कि आपने अच्छी चीज़ खाई है, कोई बहुत ऑयली या बहुत कुछ इस तरह की चीज़ नहीं खाई। तो ये जी बड़ा ही मज़ेदार सैलेड बना हुआ था, इसके अंदर फ्रूट्स भी थे, इसके अंदर वेजिटेबल भी थी, इसके अंदर ब्रेड को टोस्ट अच्छे से करके उसके पीस काट के आप उसको चाहे तो टाइट एयर जो जार होता है उसमें भी रख सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी हमने खाया और इसे हमने एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद जी मेरी तरफ आई नाजिया और एस लैला बुखारी। वो मेरे इधर घर के पास ही कहीं आई थी जी अफ़सोस के लिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी मैं घर आई हुई हूँ तो आप आएँ, चलें मिल भी लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए जी दोस्तों से जो मेरी मुलाकात है वो इतनी नहीं हो रही, एक साथ बैठना नहीं हो रहा। तो यहाँ जी बस चाय का जो था एक छोटा सा इंतज़ाम वो मैंने किया, फटाफट जो घर में था जी वो अवेलेबल चीज़ें जो थीं वो हमने जी इनके आगे पेश की और गपशप लगी, बड़ा मज़ा आया। दोस्तों के साथ मैं कहती हूँ ये चाय और खाना पीना तो जी एक बहाना होता है, मिल बैठने का असल होता है कि बैठ के आप ज़रा फ्रेश हो जाते हैं, आपको अच्छा लगता है कि कुछ टाइम हमारा अपना भी है। और ज़िंदगी में जो दोस्त है ना, मैं कहती हूँ वो भी एक ज़िंदगी ही है। जब आप उनके साथ बैठते हैं और आपकी डिफरेंट चीज़ों पे जी गपशप होती है और बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ बस यही थी, आपस में जी हम बातें शातें हम कर रहे थे, नाजिया के साथ ज़रा छेड़छाड़ कर रहे थे। और यहाँ जी लाला ने बड़ा ही प्यारा सूट पहना हुआ था। उसके बाद ये नीलाज की तरफ से मुझे आया एक पार्सल जो कि पलविशा का था और मेरे एड्रेस पे ही आया, जो कि मैंने रिसीव किया। अब ये मैं जाऊंगी तो मैं लेके जाऊंगी, तो ये पलविशा जी ही बताएंगी जी ये नीलाज ने उनको क्या भेजा। जब वो पहनेंगी तो वो आपको बताएंगी। और नीलाज के जी कपड़े अच्छे होते हैं और इसका ये है कि कोई भी पहन ले पूरे सारे आ जाते हैं। जैसे कि मैं अक्सर हम बहनें आपस में कपड़े एक दूसरे के पहन लेती हैं जो साइज़ है, क्योंकि हम बहुत फिटिंग में नहीं पहनती, हम लूज़ फिटिंग में पहनते हैं। और लूज़ फिटिंग का ये होता है कि मीडियम वाले को लार्ज भी आ जाता है और लार्ज वाले को मीडियम भी आ जाता है। और ये जी कुछ हमने किचन के जो टूल्स होते हैं, सर्विंग टूल, वो हमने मंगवाए थे। और ये देखें, और ये बड़े अच्छे आए हैं। मतलब ऑनलाइन आपको पता है कि अक्सर चीज़ों का जो डर है वो लगा रहता है। ये कोई भी फ्राई चीज़ हो आप इसको डिश में रख सकते हैं। ये दोनों तकरीबन सेम थे। एक मैंने खोला, मैंने कहा चलें जी मैं आपको दिखाऊं कि किचन में एक न्यू एडिशन हुआ है और बड़ा प्यारा है। जो कलर था इसका वो भी बड़ा खूबसूरत था और जो वेट था वो भी मतलब सॉलिड वेट था, ये नहीं कि बहुत लाइट और जिनको कहते हैं ना कई पीपा पीपा जो था वो मटेरियल नहीं था, बड़ा अच्छा था ये। तो इसको जी हम यूज़ करेंगे और आपको दिखाएंगे। और जो नई नई चीज़ें कभी आएंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बल्कि आज और भी एक चीज़ आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ज़ाहिर बात है जब ऑनलाइन आप देखें आपको कई चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, पर सम टाइम ये भी होता है कि सामने आके वो चीज़ उस तरह की नहीं होती जिस तरह की आपको ऑनलाइन नज़र आ रही होती है। तो ज़रा देखभाल के और उनके जाके जो रिव्यू लोगों ने दिए होते हैं या उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ज़रूर चेक किया करें। मेरे बच्चे जब ऑर्डर करते हैं पूरा उसको जाके सारा कुछ देखते हैं, लोगों के जो कमेंट होते हैं वो भी पढ़ते हैं, ताकि वहाँ से आपको पता चल जाता है कि वो चीज़ किस तरह की है, अच्छी है या कैसी है। तो इसके बाद जी हम आपको बाकी चीज़ें भी अपनी दिखाएंगे कि और हमें क्या क्या आया। तो यहाँ देखिए जी, ये आपको एक नज़र आ रही होगी, इसको इसके वो अलग अलग जो उन्होंने पार्ट्स थे वो अलग किए हुए थे, वो जोड़ेंगे। और ये जी किचन की शेल्फ़ वगैरह या आपका जो चूल्हा या कुछ भी उसको साफ़ करने के लिए ये बड़े अच्छे थे। ये भी ऑनलाइन मंगवाए थे, ये पहले भी मैंने ख़रीदे थे मेट्रो से आई थिंक या
इम्तियाज़ स्टोर से। पर ये जितने भी घर में हों उतने कम है जी किचन के लिए, क्योंकि अगर एक ही आप यूज़ करेंगे तो वो उसमें समटाइम स्मेल भी हो जाती है और वो गंदा बहुत हो जाता है। तो ये जी ट्रॉली आई है, तुसी ब्यूटी पार्लर वालियां ट्रालियां वेखियां होनियां, तुसी हॉस्पिटल च उन्हां दियां औज़ारां दियां ट्रालियां वेखियां होनियां। ते इस तरह वेखो जी है सफाई सुथराई दी भी ट्राली है जेह्ड़े मेरे बच्चों ने ऑनलाइन मंगा के तो ये वेखो पूरियाँ चीज़ां सैट कीतियां ने। और इसमें ये होता है कि आपको चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती, आपको पता होता है वो ट्रॉली के अंदर ही चीज़ है। तो ये सारी जी इन्होंने ये सेट की है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। बच्चों ने कहा जी आंखें बंद करें एक बड़ी प्यारी चीज़ आई है। तो अजी जोड़ के तो सजा सजू के उन्होंने लैके आए ने। वेखो सारा मतलब आपके जो डस्टबिन के बैग हैं, साबुन है, सरफ़ है, ये सारी सफाई सुथराई के जो औज़ार हैं, वॉशिंग के जो सारी चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर सेट हो जाती हैं। छोटी सी ट्रॉलीज़ को आप कहीं भी रख सकते हैं। जैसे आपकी अक्सर स्टेयर्स के नीचे जगह होती है या वहाँ पे कैबिनेट बनी होती हैं, या किचन की किसी आप कैबिनेट के अंदर इसको सेट कर सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आई। मैं कहा चलो जी अभी चंगा हो गया है, तो कोई चीज़ लभनी नहीं पेगी। सारिया चीज़ां शीशा साफ़ करने वालियां, चूल्हा साफ़ करने वालियां, बाथरूम साफ़ करने वालियां सारिया चीज़ सैट हो गई। उस तो बाद जी असी आए बाज़ार, कुछ बच्चों ने ग्रॉसरी करनी थी तो उन्होंने मुझे कहा मामा आप आ जाए। मैं कहा नहीं मामा बहुत थक गई हुई, मेरा दिल करना मैं गड्डी च बैठ के थोड़ी रेस्ट करा। तो मैं कहा जाओ। और ये भी एक अच्छी चीज़ है, जब मेरे बच्चे छोटे थे ना वैसे तो मेरे हस्बैंड के साथ जब जाते थे तो मेरे हस्बैंड ने बच्चों का ना जाके चीज़ ले गए कि बच्चों को एक तो चीज़ ख़रीदने का पता हो, बच्चे में थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि बात कैसे करनी है। क्योंकि बच्चों ने जब पढ़ाई भी करनी है, यूनिवर्सिटी में जाना है, आगे जॉब्स करनी है, तो उसकी ट्रेनिंग बच्चों को शुरू से होनी चाहिए। तो अब जैसे बच्चे बड़े हुए हैं तो मैं भी कभी कभी ऐसे कर लेती हूँ। अव्वल तो मैं साथ ही होती हूँ, पर कभी कभी मैं कहती हूँ कि जाओ ये चीज़ जाके खुद ले आओ। पर बच्चों का ये होता है नहीं माँ ना लाए थे तो मैं क्या अज माँ ने नहीं आना, अज जाओ तो चीज़ां आप ही लैके आओ। तो यहाँ से बस जी कुछ चीज़ें हमने ख़रीदनी थी। उसके बाद जी मेरा जो सफ़र था वो फिर अब्बू जी के घर की तरफ ये देखें जी स्टार्ट हो चुका है। आसमान का रंग देखें कितना खूबसूरत है। तो ट्रैवलिंग के दौरान मैं मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मेरा दिल करता है जिसको मैं कैप्चर करूँ, जो मेरी आंखों को अच्छी लगती है मेरा दिल करता है उसको मैं कैप्चर करूँ। इवन के कई टर्न जिसको जो मोड़ हम बोलते हैं, मोड़ इतने खूबसूरत होते हैं मैं उनको भी कैप्चर करती हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम अच्छे लग रहे होते तो मेरे जैसे कई लोग होंगे। क्योंकि कई लोगों की सोच या कई जो देखने का एक लोगों को चीज़ों को महसूस करने का है वो कई लोगों की एक जैसी हो सकती है। तो इसलिए जी मैं जो ट्रैवलिंग है वो थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए कैप्चर करती हूँ। और मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगता है जब कोई कहता है हाय तुसी साडे शहर दे कोलों लंघे हो, हाय तुसी मेरे पेके घर दे कोलों लंघे हो, हाय तुसी मैनू मेरा शहर विखा दी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलें मेरी इस जो ट्रैवलिंग की वीडियो से किसी को खुशी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। और ये भी जी एक सदका जारी है। तो यहाँ लो जी हम पहुंच आए अब्बू जी के घर। और यहाँ जी पलविशा ने बच्चों का पसंदीदा जो खाना था वो बाहर से ऑर्डर किया हुआ था। खाला होते मौजा ना आना किंज हो सकता है मासी दा जी अपना ही मज़ा है। हमारी खाला माशाल्लाह एक ही थी, अब वो इस दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। जब हमने भी खाला के घर जाना होता था तो खाला को पता था कि बच्चों को मेरे हाथ के चावल बड़े पसंद हैं, तो खाला ने चावल बनाने या जो देहात में एक मखसूस चीज़ें होती हैं वो बनानी उन्होंने अपने स्टाइल में, और सारी देसी चीज़ें होती थी। फिर जब कभी खाला ने आना तो खाला ने जी चावल लेके आने, गुड़ लेके आना, अचार बना के लेके आना, तो बड़ा मज़ा आता था। तो यहाँ जी बस हम खाना स्टार्ट ही करने लगे थे, फिर हमारे नेबर से आ गई तो उनके साथ जी थोड़ी फिर गपशप हुई। उनको हमने कहा खाना खाए, उन्होंने कहा जी आप खाना खाएं आपका खाना ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ जी बच्चों और जो खाला ने जो खाना था वो एंजॉय किया, मैंने भी किया, मैंने भी खाया। और यहाँ हुई जी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे मुझे गुड मॉर्निंग हुई, बस नाश्ता किया। नाश्ते के बाद धूप बड़ी अच्छी थी यहाँ, फिर जी हम बैठे तो हमने कहा जी फ्रूट लेके आओ, फ्रूट खाया। उसके बाद अब्बू जी के खाने का टाइम हो गया। यहाँ पे जी शलजम और गोश्त बना हुआ था वो अब्बू जी को दिया। तो आजकल जो धूप है उसमें बैठो तो भी गर्मी लगती है, जो ना बैठो फिर थोड़ी थोड़ी तुहानू सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। तो अब्बू जी नहाए, नहाने के बाद जी उनको जो धूप में था उनका बिस्तर, क्योंकि पूरी धूप में भी अब्बू जी भी तंग होते हैं, उनको भी गर्मी लगती है। फिर ये कि आधी चारपाई धूप में करनी पड़ती है और आधी छाँव में, ताकि वो आराम से लेट सकें। प्रॉपर अभी पूरी धूप में नहीं बैठा जाता है। तो सर्दी पर दिन टाइम जो है ना धूप तेज़ होती है, जब धूप ख़त्म हो जाए ना फिर सर्दी का एहसास होना शुरू हो जाता है।
फिर तुसी कोई बुक्कल शुक्कल मार लैंदे हो चादर चूदर दी। यहाँ जी किचन वगैरह सारा साफ सुथरा होता हो। देखो जी खरबूजे, तो खरबूजा पहला जी गर्मियाँ च आंदा सी, हुण सर्दियाँ भी तुहानूं खरबूजा नज़र आन डया। अब अभी जाएँ फ्रूट शॉप पे आपको खरबूजे भी नज़र आएंगे। यहाँ जी हो रही थी अजान, तो मैं आपको थोड़ी सी अजान भी सुनवाती हूँ। साबा जी बैठी यहाँ पे अपने कपड़े धो रही थी। उसने नहाना भी था, तो उसने कहा जो पहले कपड़े पड़े हैं जी वो मैं धो लूँ। तो जो हाथ से औरतें कपड़े धोती, मैं ये तो एक आपकी शोल्डर की एक्सरसाइज भी है, हाथ की एक्सरसाइज भी है। और साबा जैसी कई औरतें ऐसी हैं जो मशीन को अवॉइड करती हैं और हाथ से कपड़ों को जो धोना है उसको वो कहते हैं कि ये ठीक है। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी अम्मी भी थी, उनके बहुत कम कपड़े जो होते थे अम्मी वाशिंग मशीन में डालती थी, वरना हमारी अम्मी भी अपने कपड़े हाथ से ही धोती थी। चाहे उनका दुपट्टा हो, चाहे उनकी सॉक्स हों, चाहे उनके कपड़े, वो मशीन में बाकी कपड़ों के साथ अम्मी कपड़े अपने नहीं डालती थी। उनको बड़ा ही होता था, माशाल्लाह तहज्जुद गुजार थी, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी, कुरान पाक पढ़ती थी। तो कपड़ों का उनको पाक रखने का वो बड़ा होता था कि किसी दूसरे के कपड़े साथ भी मैं ना दूँ। तो वो अपने कपड़े जी खुद धोती थी। यहाँ जी साबा जो कपड़े धोए डाले, उसके बाद नहाई, उसके बाद जो फिर उसने कपड़े अपने वो उतारे धोने वाले, अब उनको भी वो धो रही थी कि बाजी ना मैं हुणे धो के उत्ते जाके छाते पान दी। और यहाँ जी पलवशा जी ने नया सूट पहना था, बहुत ही प्यारा, और साहबा यहाँ नमाज़ पढ़ रही थी। देखिए धूप कितनी अच्छी आती है, और काफ़ी देर तक जो धूप है मतलब सेन से होती हुई वो बरामदे में आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता धूप जी यहाँ से ख़त्म होती है। पर धूप ख़त्म होने के कुछ देर तक जी यहाँ पे वो जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी जी सेक रहता है, क्योंकि ये जो लगा होता है ना, ये मार्बल या पत्थर जो भी इसको कहते हैं, ये गर्म होता है धूप में ना, तो इसकी गर्माइश है वो जो रहती है। और साहबा जी यहाँ पे अब अपने काम से फारिग हो हवा के धूप में बैठी हुई थी। मैं धूप हूँ कंध ते चढ़ी जानी, साहबा कंध ते ना चढ़ जाए। अब्बू जी जी यहाँ कुछ ठंडी चीज़ मांग रहे थे खाने। यहाँ हुई जी शाम, और शाम को एक पुरानी याद से हुई मुलाकात, और ये जो पुरानी याद थी बड़ी खूबसूरत थी याद। बचपन की एक जो ज़िंदगी थी वो इनके साथ गुजरी, गलियों में खेलते हुए, इनके घर आना जाना, इनका हमारे घर आना जाना जी। राबिया और ये जी यूके होती हैं, इनकी शादी उधर हुई है और ये स्पेशली मिलने के लिए आई हैं। तो उसको मैंने कहा अगर तुम वैसे अचानक मेरे सामने आती तो मैं शायद तुम्हें ना पहचान सकती, क्योंकि ये वैसी नहीं जैसे मैंने इसको देखा हुआ था। बड़ी स्लिम स्मार्ट, बड़ी खूबसूरत थी। फिर जी माशाल्लाह बच्चे हैं और फिर हेल्थ इशू भी हो जाएं तो आप वैसे नहीं रहते जैसे आप होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा राबिया से मिलके, बचपन की बड़ी बातें हुई, बचपन की बड़ी यादें, और एक अच्छा वक्त इनके साथ जी हमारा गुजरा। पर लोग अक्सर कहते थे तुसी आपस च भैणां हो, हमारी शक्लें बहुत मिलती थी एक दूसरे के साथ। तो ये जी बड़ी एक खूबसूरत याद है, और मैं मेरे पास अल्फाज नहीं कि इसको मैं बयान किस तरह करूँ, कि इंसान कभी ना कभी देखे कहीं ना कहीं किसी को मिल ही लेता है। तो कैसा लगा जी मेरा आज का व्लॉग? आई हो पसंद आया होगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।